Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome again. I'm Dr. Tajdar Ahmed. आज से हम दोबारा लेक्चर स्टार्ट। वालेकुम सलाम। हमारा आज का टॉपिक है फेशिया, आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स ऑफ हैंड। पहले मसल्स और बोन्स डॉक्टर फ्रिया ने आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। अब हम ये कवर करेंगे, इसके बाद हमारी थर्ड सब स्टेज होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्किन एंड फेशिया ऑफ हैंड। So the skin of palm is thick for protection of underlying tissues. It is immobile because of its firm attachment to the underlying palmar aponeurosis. Palmar aponeurosis क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। So third क्या है, skin of palm is creased. So skin of palm के three features हैं, thick है, ठीक है, immobile है, firm attachment है underlying palmar aponeurosis के साथ, और creased है. That's why it is multifunctional. So all of these characters increase the efficiency of the grip. So the skin is supplied by spinal nerves C6 to C8. So हमारे पास C6 to C8 segments जो हैं spinal nerves के, उनके थ्रू सप्लाई होती है skin of palm through median and ulnar nerves. So main nerves जो palm को सप्लाई कर रही हैं वो median and ulnar nerves, ये sensory supply की बात कर रहे हैं. So then superficial fascia of palm is made up of dense fibrous bands which binds skin to the deep fascia, which is palmar aponeurosis. Palmar aponeurosis के बारे में हम स्टार्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने स्टार्ट में ओवरव्यू पढ़ा था फेशिया वगैरह का, तो उसमें हमने कहा था कि एंटी ब्रेकियल फेशिया जो है वही आपका कंटिन्यू करता है पाम में एज अ palmar aponeurosis एंड palmar fascia. सो ये उसी की थिकनिंग है डीप फेशिया की, जो palmar aponeurosis है. तो सुपरफिशियल फेशिया डेंस फाइब्रस बैंड्स हैं जो स्किन को अडहेयर करते हैं डीप फेशिया के साथ एंड डिवाइड द सबक्यूटेनियस फैट into small tight compartments which serve as water cushions during firm gripping. So it also divides it into compartments. Then fascia contains a subcutaneous muscle, the palmaris brevis. So एक हमारे पास palm में muscle है, palmaris brevis, ये muscles में आप पढ़ चुके होंगे, which helps in improving the grip by steadying the skin on ulnar side of hand. Then next क्या है, superficial metacarpal ligament. Superficial metacarpal ligament क्या है, या हम खुद डायग्राम में भी दिखा रहे थे. यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं एंटी ब्रेकियल फेशिया जो है वो कंटिन्यू कर रहा है एज अ palmar fascia and there is thickening of this palmar fascia as palmar aponeurosis. वही palmar aponeurosis आगे डिजिट्स में कंटिन्यू कर रहा है एज अ सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट. यहाँ पे ये आप डायग्राम में देख सकते हैं लेबल्ड है सुपरफिशियल ट्रांसवर्स मेटाकार्पल लिगामेंट. So superficial metacarpal ligament which stretches across the roots of fingers over the digital vessels and nerves is a part of this fascia. So it is the part of palmar fascia. सुपरफिशियल फेशिया की पहले हमने बात की, अब हम नेक्स्ट डीप फेशिया. डीप फेशिया वही हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं. So the fascia of palm is continuous with the antebrachial fascia or fascia of the forearm and the fascia of the dorsum of hand. So palmar fascia is thin over the thenar and hypothenar eminences, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा मस्कुलर होता है, बल्कि होता है मसल्स की वजह से, तो फेशिया वहाँ पे थिन है एज thenar and hypothenar fascia respectively. उनके ऊपर जो फेशिया होगा उसे उसी नेम से हम फिर कहेंगे thenar and hypothenar fascia. However, palmar fascia is thick centrally where it forms the fibrous palmar aponeurosis. So it is thick in the center and forms palmar aponeurosis, and in the fingers where it forms digital sheaths. At the metacarpal level, it forms transverse metacarpal ligament and further continues as digital sheaths into the digits. So palmar aponeurosis, a strong, well-defined part of deep fascia of palm, covers the soft tissues and overlies the long flexor tendons. इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें भी पामर, यहाँ पे पामेरिस ब्रेविस मसल भी शो किया हुआ है जो हेल्प करता है ग्रिप में.
फिर थिनार फेशिया, थिनार मसल्स के ऊपर थिनार एमिनेंस, हाइपोथिनार फेशिया, हाइपोथिनार एमिनेंस के ऊपर, फिर सेंटर में थिकनिंग है पामर फेशिया की एज पामर एपोन्यूरोसिस. So it continues as transverse metacarpal ligament. Here is the transverse metacarpal ligament. ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहे हैं जो कनेक्ट कर रहे हैं दोनों को, ठीक है. फिर आगे ये कंटिन्यू होगा डिजिट्स में एज अ डिजिटल शीट्स, फाइब्रस डिजिटल शीट्स. देन आर्टरीज ऑफ हैंड. सो हैंड में जो आर्टरीज हैं वो मेनली टर्मिनल ब्रांचेज हैं. कौन सी आर्टरीज की? वही जो फोर आर्म से कंटिन्यू कर रही हैं, अल्नर और रेडियल. So arteries of hands are terminal parts of ulnar and radial arteries. Branches of these arteries unite and form anastomotic channels called the superficial and deep palmar arches. So mainly ulnar और radial arteries जो हैं वो anastomose करती हैं और दो anastomotic channels बनाते हैं. One is superficial palmar arch and second is deep palmar arch. अब इनकी लोकेशन और वो इनके नाम से ही जाहिर है. अब सुपरफिशियल पामर आर्च जो है वो सुपरफिशियली पड़ी होगी पाम में और सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही थी, और डीप पामर आर्च जो वो डीपली होगी. देन अल्नर आर्टरी इन हैंड. अब हम अल्नर आर्टरी को थोड़ा डिटेल से डिस्कस करते हैं, इसकी ब्रांचेस देखते हैं कौन कौन सी हैं हैंड में. तो सुपरफिशियल पामर आर्च हम उसकी बात कर रहे थे. इट इज मेन टर्मिनेशन ऑफ अल्नर आर्टरी and gives rise to three common palmar digital arteries that anastomose with palmar metacarpal arteries from deep palmar arch. So superficial palmar arch से आपकी आ रही हैं common palmar digital arteries और deep palmar arch से आ रही metacarpal arteries जो anastomose करती हैं. Each palmar digital artery divides into a pair of proper palmar digital arteries which run along the adjacent sides of second to fourth digits. अब इसमें आप देखें अल्नर आर्टरी आ रही है जहाँ से, ये सुपरफिशियल पामर आर्च बन रही है, ठीक है. उससे आगे ये डिजिटल आर्टरीज जो निकल रही हैं ये डिजिटल आर्टरीज हैं, ठीक है. इससे आगे फर्दर ये प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज में डिवाइड होती हैं जो फिंगर्स को आगे फर्दर सप्लाई कर रही हैं, ये ठीक है. नेक्स्ट आ जाती है अब रेडियल आर्टरी इन हैंड. So the radial artery curves dorsally. So radial artery mainly dorsal side पे curves dorsally around the scaphoid and trapezium and crosses the floor of anatomical snuff box. So radial artery आपके curve करके dorsal side पे anatomical snuff box में आ जाती है, उसके floor में, ठीक है. So it enters the palm by passing between heads of first dorsal interosseous muscle and then turns medially, passing between heads of adductor pollicis. यहाँ पे आप देखें, यहाँ से रेडियल आर्टरी आ रही, ठीक है. यहाँ से ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में एंटर होगी, फिर अडक्टर पोलिसिस ये मसल है, यहाँ से फिर पोस्टीरियर साइड से ये एंटर होके कर्व करके यहाँ से निकल रही है, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है. तो रेडियल आर्टरी enters the palm by passing between heads of first dorsal interosseous muscle and then turns medially, passing between the heads of adductor pollicis. So the radial artery ends by anastomosing with deep branch of ulnar artery to form the deep palmar arch, which is formed mainly by radial artery. So ulnar artery forms mainly superficial palmar arch, while radial artery forms the deep palmar arch. So this arch lies across the metacarpals just distal to their bases. So ये deep palmar arch है, so ये metacarpals के बिल्कुल साथ है, just distal to their bases. So deep palmar arch give rise to three palmar metacarpal arteries and the princeps pollicis artery. So deep palmar arch से जो arteries निकल रही हैं वो palmar metacarpal arteries हैं और princeps pollicis artery है. Ulnar artery से कौन सी branches निकल रही थी? पामर डिजिटल आर्टरीज, ठीक है. ये आपस में एनास्टोमोज करती हैं. फिर रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी passes along the lateral side of index finger
इट यूजुअली अराइजेस फ्रॉम रेडियल आर्टरी। एक और ब्रांच है, ये रेडियल आर्टरी से डायरेक्ट निकलती है, रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी, जो आपकी इंडेक्स फिंगर को सप्लाई कर रही, लेटरल साइड ऑफ इंडेक्स फिंगर। अभी हम आगे डायग्राम में भी देख सकते हैं। पामर, डीप पामर आर्च, ये आपकी डीप पामर आर्च बन रही, इससे पामर मेटाकार्पल आर्टरीज निकल रही हैं और एक थंब के साथ जाती है प्रिंसिप्स पोलिसिस आर्टरी, जिसे कहते हैं, जो थंब को सप्लाई करती है। फिर एक और आर्टरी रेडियलिस इंडिसिस, ये आप देख रहे हैं इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर की लेटरल साइड पे ये ट्रेवल करती है और उसकी लेटरल साइड को सप्लाई करती है। बाकी पामर मेटाकार्पल आर्टरीज एनास्टोमोस करती हैं पामर डिजिटल आर्टरीज के साथ, और आगे प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज जो हैं वो सप्लाई करती हैं बाकी फिंगर्स को, लेकिन इंडेक्स फिंगर की लेटरल साइड को सप्लाई करती है रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी। अच्छा, इसमें ओवरव्यू है आपकी आर्टरीज कौन कौन सी आ रही हैं। रेडियल आर्टरी ऑन द लेटरल साइड, अल्नर आर्टरी ऑन द मीडियल साइड। सो अल्नर आर्टरी मेनली फॉर्म्स द सुपरफिशियल पामर आर्च, ये आपकी सुपरफिशियल पामर आर्च है। उससे आगे फर्दर ब्रांचेस जा रही हैं, कौन सी, कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज, ये सुपरफिशियल पामर आर्च में से निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज। ये आगे डिवाइड होती हैं फिंगर्स के पास जाके प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज में। ठीक है, प्रॉपर डिजिटल आर्टरीज आपकी इंडेक्स फिंगर की मीडियल साइड और बाकी साइड्स को सप्लाई करती हैं, बाकी फिंगर्स को, सॉरी डिजिट्स को। ठीक है, अब लेटरल साइड से आ रही है आपकी रेडियल आर्टरी। ठीक है, रेडियल आर्टरी डीप चली जाती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में से पास करके, फिर आगे ये डीप पामर आर्च बनाएगी। डीप पामर आर्च में से कौन सी ब्रांचेस निकल रही, ये आप देख सकते हैं पामर मेटाकार्पल आर्टरीज। ठीक है, पामर मेटाकार्पल आर्टरीज एनास्टोमोस करती हैं पामर डिजिटल आर्टरीज के साथ। ठीक है, रेडियल आर्टरी से डायरेक्ट ब्रांच निकल रही है रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी, रेडियल आर्टरी से डायरेक्ट भी निकल सकती है और आपकी डीप पामर आर्च से भी निकल सकती है, जो कि इंडेक्स फिंगर के लेटरल साइड को सप्लाई कर रही है। और एक और ब्रांच निकल रही है इधर से प्रिंसिप्स पोलिसिस आर्टरी, जो कि आपकी थंब को सप्लाई कर रही है। तो ये मेनली आपकी हैंड की ब्लड सप्लाई है। सो आर्टरीज ऑफ हैंड, इनका टेबल है जिसमें ओवरव्यू सबका दिया हुआ है। सुपरफिशियल पामर आर्च, डीप पामर आर्च, आगे फर्दर इनकी ब्रांचेस, सुपरफिशियल पामर आर्च में से कॉमन पामर डिजिटल आर्टरीज, जो फर्दर डिवाइड होके प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज में डिवाइड होती हैं। फिर प्रिंसिप्स पोलिसिस आर्टरी, रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी और पामर मेटाकार्पल आर्टरी, जो कि डीप पामर आर्च की ब्रांचेस हैं। की डिटेल आगे पढ़ा दी है, इसका कोर्स और ओरिजिन इस टेबल में सारा डिटेल से लिखा हुआ। ठीक है, वैसे भी आपको मैंने शॉर्ट डिस्कस कर दिया है। अब आगे फर्दर आगे वेन्स ऑफ हैंड। वेन्स कौन कौन सी है हमारे पास, इसमें भी सुपरफिशियल एंड डीप वीनस पामर आर्चेस एसोसिएटेड विद सुपरफिशियल एंड डीप palmar arterial arches drain into the deep veins of the forearm. So जिस तरह ये superficial palmar arches arterial arches बनती हैं, superficial और deep palmar arches हैं, उसी तरह उनके साथ साथ ही venous channel भी चल रहा है, जो कि superficial और deep venous arches बनती हैं। ठीक है, वो ब्लड ड्रेन करके हैंड में से डीप वेन्स ऑफ फोर आर्म में ले जाती हैं। डीप वेन्स ऑफ फोर आर्म कौन कौन सी हैं, मीडियल साइड पे बेसिलिक वेन है और लेटरल साइड पे सेफेलिक वेन। तो डॉर्सल डिजिटल वेन्स जहाँ से आती हैं वो ड्रेन करेंगी इनटू डॉर्सल मेटाकार्पल आर्टरीज। मेटाकार्पल आर्टरीज विल यूनाइट टू फॉर्म डॉर्सल वीनस आर्च। इसी तरह डीप वीनस आर्च, सुपरफिशियल वीनस आर्च सॉरी, और डीप वीनस आर्च, वो दोनों। Superficial to the metacarpus, this network is prolonged proximally on the lateral side as cephalic. अपने माइक्स म्यूट रखा करें until unless किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना हो। So superficial to the metacarpus, this network is prolonged proximally on the lateral side as the cephalic vein. So lateral side पे ये
ब्लड ड्रेन करके कंटिन्यू करती हैं एज अ सेफेलिक वेन और मीडियल साइड पे एज बेसिलिक वेन। ये वेन्स हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पहले। देन आर दी नर्व्स ऑफ हैंड। अब नर्व्स कौन कौन सी हैं जो हैंड को सप्लाई करती हैं? मीडियन, अल्नर एंड रेडियल नर्व्स, दे सप्लाई द हैंड। In addition, branches or communication from lateral and posterior cutaneous nerves may contribute some fibers that supply the skin of the dorsum of hand. ये भी इन्हीं की branches हैं, lateral and posterior cutaneous nerves. So mainly median nerve, ulnar nerve and radial nerve, they supply the hand. रेडियल नर्व की मस्कुलर सप्लाई तो ना होने के बराबर है, सेंसरी सप्लाई इसकी कुछ है। सो मस्कुलर सप्लाई जो है वो मेनली मीडियन नर्व और अल्नर नर्व की है। So in the hand, these nerve conveys sensory fibers from spinal nerves C6 to C8 to the skin, so that C6 to C8 dermatomes include the hand. So hand में mainly C6 to C8 dermatomes वो आते हैं 3, ये याद रखा करें, जब प्रॉफ में पूछते हैं ऐसे क्वेश्चंस तो आपको याद नहीं रहते। So hand के dermatomes mainly 3 हैं, C6, C7, C8 और T1 का small सा portion है। आगे लास्ट स्लाइड में डर्माटोम की भी एक स्लाइड है, उसमें प्रॉपरली डर्माटोम में आपको दिखा दूंगा कि कौन कौन से डर्माटोम कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड कर रहे हैं। So median and ulnar nerves convey motor fibers from spinal nerve T1 to the hand. The intrinsic muscles of the hand make up myotome T1. Then median nerve in hand. अब median nerve hand में कौन कौन सी सेंसरी सप्लाई देती है और कौन कौन सी मस्कुलर, ये हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। और इसका कोर्स हैंड में क्या क्या है। सो मीडियन नर्व एंटर्स द हैंड थ्रू द कार्पल टनल। कार्पल टनल कहाँ पे बनती है? फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम के नीचे। सो डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम अलोंग विद 9 टेंडन्स ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस एंड फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस। सो इनके टेंडन्स हैं, उनके साथ ही ये एंटर होती थ्रू दी कार्पल टनल। सो कार्पल टनल बेसिकली क्या है? कार्पल टनल इज द पैसेज वे deep to the flexor retinaculum between the tubercles of scaphoid and trapezoid bones on the lateral side. So lateral side पे scaphoid and trapezoid bones हैं, and pisiform and hook of hamate on the medial side. दोनों साइड्स पे वो बोन्स हैं और साथ फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम है जो अटैच्ड है ऊपर इनके, तो एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें से ये स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं। So distal to the carpal tunnel, median nerve supplies 2.5 thenar muscles and first and second lumbricals. So इसकी सप्लाई क्या है? 2.5 thenar muscles and first and second lumbricals. So sensory supply क्या है? It also sends sensory fibers to the skin on the entire palmar surface. So पूरी palmar surface पे sensory supply, और digits में क्या है? The sides of first 3 digits and lateral half of 4th digits. So 3.5 digits को सप्लाई कर रही, ऐसे याद रखें कि lateral 3.5 digits को सप्लाई कर रही और medial 1.5 digit को ulnar nerve सप्लाई करती है। So sensory supply on the palmar side is lateral 3.5 digits by median nerve. However, the palmar cutaneous branch of median nerve, which supplies the central palm, arises proximal to flexor retinaculum and passes superficial to it. So palm को जो सप्लाई कर रही है palmar cutaneous branch और median nerve, वो flexor retinaculum में से पास करने से पहले ही निकल आती है median nerve से. So it does not pass through the carpal tunnel. So ये MCQ पॉइंट है, इस तरह के क्वेश्चन MCQs में पूछते हैं। मीडियन नर्व की सप्लाई कितनी? सेंसरी सप्लाई वो 3.5 है। मसल्स इसके कौन कौन से सप्लाई करते हैं? 2.5 थिनार मसल्स एंड फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल्स। इसमें आप देख सकते हैं ये मीडियन नर्व यहाँ से फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम में से पास कर रही, यहाँ से ये इसकी पामर क्यूटेनियस ब्रांच पहले ही ओरिजिनेट कर रही है, ये पाम को सप्लाई करेगी, फिर आगे ये थिनार मसल्स को सप्लाई करेगी और फर्स्ट एंड सेकंड लम्ब्राइकल को। और सेंसरी सप्लाई क्या है? 3.5 डिजिट्स, ठीक है, लेटरल 3.5 डिजिट्स।
देन अल्नर नर्व इन हैंड, अल्नर नर्व का हैंड में कोर्स क्या है, सेंसरी सप्लाई क्या है, ठीक है, मसल्स को कौन कौन से सप्लाई करती है, अब ये हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. So ulnar nerve leaves the forearm by emerging from deep to tendon of flexor carpi ulnaris. It continues distally to the wrist via the ulnar canal. Ulnar canal एक हमने पढ़ी थी, गयोन कैनाल भी इसे कहते हैं, जो हुक ऑफ हेमेट और पीजिफॉर्म के दरमियान में बनती है, तो वहाँ से अल्नर नर्व पास करती है. The ulnar nerve gives off a palmar cutaneous branch which passes superficial to flexor retinaculum and palmar aponeurosis and supplies skin on the medial side of palm. So center of palm को mainly median nerve की palmar cutaneous branch supply कर रही थी और medial side of palm को ulnar nerve की palmar cutaneous branch supply कर रही. अब dorsal cutaneous branch of ulnar nerve supplies the medial half of dorsum of hand, the fifth finger and medial half of fourth finger. ठीक है, medial half of dorsum of hand को भी और fourth finger का medial half और fifth finger, ऐसे याद रखिए कि 1.5 medial side of finger. ठीक है, 3.5 digits को कौन सी सप्लाई कर रही थी, median nerve, और 1.5 को ulnar nerve. लेकिन ये डॉर्सम पे भी सप्लाई करती है, ये भी याद रखना. मीडियन नर्व की डॉर्सल साइड पे सप्लाई नहीं थी. So ulnar nerve ends at the distal border of flexor retinaculum by dividing into superficial and deep branches. Superficial branch of ulnar nerve supplies cutaneous branches to anterior surface or medial 1.5 digits, and deep branch of ulnar nerve supplies the hypothenar muscles, medial 2 lumbricals, adductor pollicis, deep head of flexor pollicis brevis, and all the interossei. So ये इसकी muscular supply है. ये भी याद रखें कौन कौन से मसल्स को सप्लाई कर रही है, हाइपोथिनार मसल्स, मीडियल 2 लम्ब्राइकल्स, adductor pollicis, flexor pollicis brevis का deep head, and all the interossei. So deep branch also supplies several joints which are wrist, intercarpal, carpometacarpal, and the intermetacarpal. So ulnar nerve is often referred to as nerve of fine movements. So ये fine muscles को सबको supply कर रही है, lumbricals को, interossei को, तो इसे nerve of fine movements भी कहते हैं. डायग्राम में हम इसका डिटेल से कोर्स देख लेते हैं. ये अल्नर नर्व की डॉर्सल ब्रांच, ठीक है, जो सप्लाई करेगी डॉर्सल साइड पे. फिर डॉर्सल डिजिटल नर्व्स हैं, ठीक है, डॉर्सल ब्रांचेस आ गई, लेटरल मीडियल 1.5 को सप्लाई कर रही है, ठीक है. और बाकी हम इसका पिछली स्लाइड में देख लेते हैं. इस स्लाइड में अल्नर नर्व का बाकी कोर्स यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है. ये अल्नर कैनाल में से पास करती है मीडियल साइड पे. इसकी 2 ब्रांचेस, सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है, और डीप ब्रांच. डीप ब्रांच आगे फर्दर सप्लाई कर रही है मीडियल 1.5 डिजिट्स को, ठीक है, और मसल्स को. अब लास्ट नर्व हमारी है रेडियल नर्व. सो रेडियल नर्व सप्लाईज नो हैंड मसल. सो रेडियल नर्व की मस्कुलर सप्लाई नहीं है, सो इसकी बस सेंसरी सप्लाई है. The superficial branch of radial nerve is entirely sensory. It pierces the deep fascia near the dorsum of wrist to supply skin and fascia over the lateral 2/3 of dorsum of hand. So dorsum पे supply कर रही हैं radial nerve और ulnar nerve, और palm पे supply कर रही हैं median nerve और ulnar nerve. इसमें आपको सारी nerves दिखाई दे रही हैं, ठीक है. radial nerve dorsum पे आप देख सकते हैं डॉर्सल 3.5 को सप्लाई कर रही रेडियल नर्व, और डॉर्सल 1.5 को अल्नर नर्व सप्लाई कर रही, और पाम पे ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड होती है आगे प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरीज में, और देन डीप पामर आर्च में से पामर मेटाकार्पल आर्टरीज निकलती हैं जो आगे फर्दर एनास्टोमोज करती हैं विद द प्रॉपर पामर डिजिटल आर्टरी. ये सुपरफिशियल व्यू है, इसलिए इसमें डीप पामर आर्च नहीं नजर आ रही, ये आपको सुपरफिशियल पामर आर्च नजर आ रही, ठीक है. और इसी तरह नर्व्स का भी ये पामर साइड है, ठीक है, मीडियल 3.5 को मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, मीडियल 3.5 डिजिट्स को, और लेटरल 1.5 डिजिट को अल्नर नर्व.
फिर आगे कुछ ब्रांचेस और इसमें शो की हुई हैं, जैसे रेडियलिस इंडिसिस आर्टरी है, ये रेडियल आर्टरी से डायरेक्ट निकलती है, ठीक है। थंब को प्रिंसिप्स पोलिसिस आर्टरी सप्लाई करती है, ठीक है। ये आपकी प्रिंसिप्स पोलिसिस आर्टरी आ रही है जो थंब को सप्लाई करती है। इसमें आपको बाकी डीप नर्व्स और टेंडन्स वगैरह नजर आ रहा है, ठीक है। डीप डाइसेक्शन है इसमें, ब्रांचेस ये पिजिफॉर्म और हेमेट की जहाँ पे बनती है अल्नर कैनाल, जहाँ से अल्नर नर्व पास कर रही है, ठीक है। अच्छा, फिर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या होता है? एक इम्प्रेशन डीप पड़ता है, ठीक है, मसल्स के दरमियान, आप कह सकते हैं स्पेस है, ठीक है, मसल के टेंडन्स के दरमियान, ऑन दी डॉर्सम ऑफ द थंब, ठीक है, थंब की बेस पे आप कह सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे रेडियल आर्टरी को भी आप पेल्पेट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ उसमें सेफेलिक वेन भी है, ठीक है। ये मेनली बन कौन कौन से मसल्स के टेंडन के साथ रहा है, ठीक है, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और अबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस, ठीक है। ये तीन मसल्स हैं, ठीक है, इनके टेंडेंस जब पास कर रहे हैं यहाँ से साइड से, तो इनके दरमियान एक एम्प्टी थोड़ी सी स्पेस रह जाती है। आप थंब को ऊपर को करें, ठीक है, एक्सटेंड करें तो ये स्पेस बच जाती, ठीक है। तो उसमें सॉरी थंब को अबडक्ट करें, अबडक्ट करेंगे तो आपको ये एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स फील होगा डॉर्सम डॉर्सम पे, ठीक है। ये कौन कौन से टेंडेंस के दरमियान स्पेस है? between the extensor pollicis longus, extensor pollicis brevis and abductor pollicis longus। इसमें स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं? सेफेलिक वेन इसके पास साथ से पास कर रही है, ठीक है, और मेनली सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड रेडियल आर्टरी, ठीक है। रेडियल आर्टरी को आप यहाँ पे पल्पेट भी कर सकते हैं। सो दिस इज द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। देन क्लिनिकल पे आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डुपोइट्रिन्स कंट्रेक्चर, ठीक है, इसके स्पेलिंग्स जुबानी याद रखा करें, अक्सर स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या इसके स्पेलिंग्स लिख देते हैं, ठीक है, तो ये इसके प्रॉपर स्पेलिंग्स हैं, ठीक है। सो डुपोइट्रिन कंट्रेक्चर इज अ डिजीज ऑफ द पामर फेशिया। सो याद रखें डिजीज ये पामर फेशिया और पामर एपोन्यूरोसिस की है, किसी मसल की नहीं है, ठीक है। So it is disease of palmar fascia resulting in progressive shortening, thickening and fibrosis of palmar fascia and aponeurosis, ठीक है। उसकी प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग होगी, ठीक है, थिकनिंग होगी, फाइब्रोसिस होगी किसी डिजीज की वजह से, तो वो कंट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है, पामर फेशिया और पामर एपोन्यूरोसिस। आगे फर्दर डिटेल पढ़ते हैं। सो द फाइब्रस degeneration of longitudinal bands of palmar aponeurosis on the medial side of hand pulls the fourth and fifth fingers into partial flexion at metacarpophalangeal joint and proximal interphalangeal joints. Gradually, the disease first manifests as painless nodular thickening of palmar aponeurosis that adhere to skin. तो फर्स्ट पहले क्या होता है कि थिकनिंग हो जाती है पामर एपोन्यूरोसिस की, ठीक है, वो अडहेयर कर जाता है स्किन के साथ, बिल्कुल वैसे तो वो लूज है ना स्किन हैंड की, ठीक। Gradually progressive contracture of longitudinal bands produce raised ridges in the palmar skin that extend from proximal part of hand to the base of fourth and finger। फिर gradually bands बन जाते हैं, ठीक है, और contractures बनने लग पड़ते हैं। आप बस ये याद रखें कि पामर फेशिया और पामर एपोन्यूरोसिस की डिजीज है जिसमें प्रोग्रेसिव शॉर्टनिंग, थिकनिंग और फाइब्रोसिस होती है। होती कहाँ पे? ठीक है, मीडियल 1.5 फिंगर्स जो प्रॉक्सी पामर साइड पे हैं, ठीक है, उस साइड पे, ठीक है। पार्शियल फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सर्जिकल एक्सीजन है फाइब्रोटिक पार्ट ऑफ पामर फेशिया की, ठीक है, ताकि फिंगर्स को फ्री किया जाए उस कंट्रेक्चर से। इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल, एक साइड पे लेटरल साइड पे स्केफॉइड है, ठीक है, और मीडियल साइड पे पिजीफॉर्म और हेमेट है, उनके ऊपर से फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम।
तो एक पैक्ड सा स्ट्रक्चर बन जाता है, आप कह सकते हैं क्लोज्ड टनल है। अब टनल बंद कैसे होगी, या तो अंदर वाले स्ट्रक्चर वो बड़े हो गए, या जो फेशिया ऊपर है, पामर फेशिया सॉरी फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम, उसका साइज स्मॉल हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी मसला हो तो ये सिंड्रोम हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है वो कंप्रेस होंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, फ्लूइड रिटेंशन हो सकती है किसी वजह से, कोई डिजीज है, ठीक है, एडिमा हो रहा है, उसमें फ्लूइड रिटेंशन हो रही है। ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, टीनोसाइनोवाइटिस हो सकता है। ठीक है, टेंडेंस का कोई टेंडन रप्चर हो गया है, ठीक है, वो हो सकता है। ठीक है, एक्सेसिव एक्सरसाइज ऑफ फिंगर्स में cause swelling of the tendons or the synovial sheath. अब मोस्ट सेंसिटिव स्ट्रक्चर इस टनल में कौन सा है, मीडियन नर्व। So median nerve has two terminal sensory branches that supply the skin of hand. तो क्या होगा, अब साइंस और सिम्टम्स क्या होंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के, ये मेनली यही पूछते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम की मैनिफेस्ट कैसे होता है। ठीक है, उसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं। तो पैरेस्थीजियास, जिसे टिंगलिंग कहते हैं हम आम जबान में। ठीक है, उर्दू में बोलें तो वो कहते हैं सुइयाँ चुभ रही हैं। ठीक है, तो पैरेस्थीजियास, ठीक है, टिंगलिंग, हाइपोएस्थीजिया, डिमिनिश्ड सेंसेशन, सेंसेशन कम हो जाएगी, और एनेस्थीजिया, सेंसेशन टोटली लॉस हो सकती है। ठीक है, may occur in the lateral 3.5 digits. देन पामर क्यूटेनियस ब्रांच थी मीडियन नर्व की, वो प्रॉक्सिमली पास कर रही थी कार्पल टनल से। सो स्किन पाम की जो सेंसेशन है ना वो नहीं लॉस होगी। इसमें ये दिखाया गया ब्लू वाला शेडेड जोन जो है, इसमें एरिया ऑफ नमनेस है। ठीक है, टिंगलिंग होगी, जहाँ पे सेंसेशन लॉस हो जाएंगे। ये मीडियन नर्व आपकी पास कर दी कार्पल टनल में से। ठीक है, तो इसमें कोई भी इशू हो, इन्फेक्शन हो, स्वेलिंग हो जाए, ठीक है, फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम की कोई डिजीज हो जाए, ठीक है, तो उससे कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमें ये लेक्चर अवेलेबल होगा बाद में कहीं पे, अगर रिवाइज करना हो तो। लेक्चर साथ रिकॉर्ड होते हैं क्या, लेक्चर साथ रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ये साथ साथ रिकॉर्ड होते रिकॉर्ड रहते तो होता है, लेकिन हमें कहाँ पे अवेलेबल होंगे? हैं गूगल क्लासरूम में, सर वहां पर तो नहीं रोज अपलोड होते? वहाँ पे इकट्ठे अपलोड कर देते हैं ये लोग। अच्छा, अच्छा, इसमें आगे क्या है कि प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड स्ट्रेंथ इन द थंब। ठीक है, थंब में भी कोऑर्डिनेशन और स्ट्रेंथ लूज हो सकती है। क्यों, क्योंकि अबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस और ओपोनेंस पोलिसिस, ठीक है, इनको भी सप्लाई कर रही मीडियन नर्व। ठीक है, so individuals with carpal tunnel syndrome are unable to oppose the thumb and have difficulty buttoning a shirt or blouse as well as gripping things such as comb. अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस तरह के वो सिनेरियो देते हैं समटाइम कि एक इंडिविजुअल है जिसमें वो बटन नहीं कर सकता प्रॉपरली, उसका थंब प्रॉपरली मूव नहीं कर रहा। ठीक है, उसको वहाँ पे सेंसेशन नहीं फील हो रही। ठीक है, तो आगे क्या हो सकता है, कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो वो मेनली बना के देते हैं। सो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, टू रिलीव बोथ द कंप्रेशन एंड रिजल्टिंग सिम्टम्स, partial or complete surgical division of flexor retinaculum. A procedure called carpal tunnel release may be necessary. ठीक है, तो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम की सर्जिकल डिवीजन करेंगे ताकि इसमें जो भी कंप्रेशन है वो रिलीज हो जाए। अब नेक्स्ट अल्नर कैनाल सिंड्रोम, हमने एक पढ़ी थी, अल्नर कैनाल भी पढ़ी थी, उसका दूसरा नाम गायोन टनल ठीक था। ठीक है, अब वो भी कंप्रेस हो सकती है, वो भी टनल टाइप है। ठीक है, उसमें अल्नर नर्व पास कर रही है। ठीक है, अल्नर नर्व के कंप्रेस होने से क्या सिम्टम्स होंगी। ठीक है, मीडियल 1.5 फिंगर्स, उनकी सेंसेशन लॉस हो जाएगी, पामर साइड पे भी और डॉर्सल साइड पे भी। So compression of ulnar nerve may occur at the wrist, where it passes between pisiform and hook of hamate.
So depression between these bones is converted by pisohamate ligament into an osteofibrous tunnel. ठीक है, कार्पल टनल भी इसी तरह थी, दो बोन्स हैं ऊपर से फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम है, ठीक है, वो उसको टनल में कन्वर्ट करता है। इसमें भी ऐसे ही, ठीक है, पिसीफॉर्म और हेमेट है, ठीक है, ऊपर से पाइसोहेमेट लिगामेंट है, वो इसको टनल में कन्वर्ट कर रहा है जहाँ से अल्नर कैनाल पास कर रही, इसे गायोन टनल भी कहते हैं, ये याद रखें इसका नाम दूसरा। तो अल्नर कैनाल सिंड्रोम मैनिफेस्ट बाय हाइपोएस्थीसिया, डिक्रीज सेंसेशन। हाइपोएस्थीसिया का मतलब है डिक्रीज्ड सेंसेशन इन द मीडियल 1.5 फिंगर्स एंड वीकनेस ऑफ इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड। ठीक है, इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड को काफ़ी को सप्लाई कर रही है, ठीक है, आपकी अल्नर नर्व आपके इंट्रोशियाई को सप्लाई कर रही है, ठीक है, थर्ड फोर्थ लम्ब्राइकल्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है, हाइपोथेनार मसल्स को सप्लाई कर रही, तो उनकी वीकनेस भी होगी, ठीक है। और मैनिफेस्ट कैसे करेगी? क्लॉइंग होगी लिटिल और रिंग फिंगर्स की। So there will be clawing of 4th and 5th fingers, that is hyperextension at metacarpophalangeal joint and flexion at the proximal interphalangeal joint. आपसे इसकी डिटेल पूछी जाए कि अल्नर कैनाल सिंड्रोम मैनिफेस्ट कैसे होता है, तो आपने इस तरह बताना है, सिर्फ क्लॉइंग ऑफ 4th and 5th फिंगर्स नहीं लिख देना, ये प्रॉपर डिटेल लिखनी, दैट देयर विल बी हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट विद फ्लेक्शन एट प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट. But in contradiction to proximal ulnar nerve injury, their ability to flex is unaffected and there is no radial deviation of hand. So ability to flex unaffected क्यों होगी? क्योंकि radial nerve ulnar nerve पहले सप्लाई कर रही है उसको, जो आपके मसल्स हैं फ्लेक्सर कार्पी अल्नरस और दूसरे, ठीक है, वो कार्पल टनल में अगर इंजरी होगी तो ये साइन एंड सिम्टम्स होंगे। अगर पहले इंजरी हो जाती है कार्पल टनल से पहले अल्नर नर्व की, तो साथ में फ्लेक्शन भी उसकी डिस्ट्रॉय होगी। लास्ट है रेडियल नर्व इंजरी, ठीक है, रेडियल नर्व की मेनली सेंसरी सप्लाई है जहाँ पे हैंड में, तो हैंड में इसकी इंजरी से सिर्फ सेंसरी सप्लाई लॉस्ट होगी। सो although the radial nerve supplies no muscles in the hand, radial nerve injury in the arm can produce serious hand disability. So ये अगर आर्म में इंजरी होगी तो ये डिसेबिलिटी होगी। So characteristic handicap is inability to extend the wrist, resulting from paralysis of extensor muscles of the forearm, all of which are innervated by radial nerve. So ये characteristic position होती है, extensor muscles of forearm उन सब का paralysis हो जाएगा, ठीक है, वो radial nerve उनको supply कर रही है। So hand is flexed at the wrist and lies flaccid, a condition known as wrist drop. So हैंड रिस्ट पे फ्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, एक्सटेंड प्रॉपर्ली हो नहीं रहा, ठीक है, अनअपोज्ड फ्लेक्शन होगी, ठीक है, एक मसल पैरालाइज हो जाए एक साइड के तो दूसरे मसल से अनअपोज्ड फ्लेक्शन होती है, ठीक है। सो हैंड इज फ्लेक्स्ड एट रिस्ट एंड लाइज फ्लैसिड, सो फ्लैसिड रहेगा क्योंकि एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो कंडीशन, दिस कंडीशन इज नोन एज रिस्ट ड्रॉप. So interphalangeal joints can be extended weakly through the action of intact lumbricals and introsia. So interphalangeal joints can be extended weakly through the action of, यार शोर नहीं करें, अपने माइक्स ऑफ रखें, ये कौन बोल रहा है? ये कोमल नदीम डीपीटी लिखा हुआ है। अपने माइक्स ऑफ रखा करें काइंडली, अनटिल अनलेस किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा। सो इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स में जो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो लम्ब्राइकल्स और इंट्रोशिया के थ्रू है, ठीक है, उनको सप्लाई कर रही हैं आपकी मीडियन और अल्नर नर्व, तो उनमें भी एक्सटेंशन पॉसिबल होगी, ठीक है। सो रेडियल नर्व की हैंड में बस सेंसरी सप्लाई है वो लॉस्ट होगी अगर हैंड में इंजरी होती है, ठीक है। सो द एक्सटेंट ऑफ एनेस्थीसिया इज मिनिमल इवन इन सीरियस रेडियल नर्व इंजरीज and is usually confined to small area on the lateral part of dorsum of hand. तो extent of sensory innervation जो है, जो डैमेज होगी वो मिनिमल है।